Hello everyone, my name is Anurag Raj and I have pursued my BTech from IIT Roorkee and I have been teaching since 8 years, and during this journey I have produced multiple all India ranks. So the topic that we'll be dealing today is one of the most important topic of physical chemistry, that is electrochemistry. Now if I start with this topic of electrochemistry, this particular chapter of electrochemistry has 3 parts, and we'll be dealing with these 3 parts separately. The first part deals with electrochemical cell. The second part of the chapter deals with electrolytic cell. So in the third part of the chapter, we'll be dealing with a particular thing, and we'll be trying to understand how this ion act like a carrier of current. So I'm naming that part as resistance. So we'll be dealing with resistance of the cell. Now in today's lecture, we'll only deal with electrochemical cell. In the later on lecture, we'll be dealing with electrolytic cell and resistance of the cells. Now if we talk about electrochemical cell, what it is and how we make this cell. Now before starting with this chapter, let me recap you with some concepts from physics about electricity. Now if I want to make a cell, and so what I have to do is to get electron out of a chemical reaction and make that electron flow from one point to another point, and that will constitute an electrical current. Now if I'm what are the reactions from which electron can be generated out? As you all know, redox reaction. In redox reaction particularly, the electron is generated out in one of the reaction, that is oxidation reaction. The electrons are generated out and they are consumed in the reduction part of the reaction. So in particular, electrochemical cell can be made out of any redox reaction, because in that particular redox reaction the electrons are generated in the oxidation part of the reaction and are consumed in the reduction part of the reaction. So if I doing oxidation reaction and in other I am performing reduction reaction, and I am somehow connecting these two beakers together, so what will happen? The electrons are generated over here in the redox in the oxidation half of the cell, and they will be consumed in the reduction half of the cell. So electron has to move out from oxidation half towards the reduction half, where they'll be consumed out. Now one such example of this cell is the Daniell cell. Now let's move on and try to understand what happens and why actually this how this Daniell cell work. Now Daniell cell is a very simple arrangement in which we take a zinc electrode dipped in a zinc solution, let's say zinc sulfate solution, and on the other half of the cell I'll take copper sulfate and dip a copper rod in it. So copper sulfate solution will have a copper rod dipped in it. Now what will happen over here? Now if I look at this particular arrangement, the zinc has electronic configuration of argon 3d10 4s2, while Zn plus 2 has an electronic configuration of argon 3d10. So what will happen? The zinc in the rod will start to come out in the solution in the form of Zn plus 2, since Zn plus 2 is more stable, leaving out 2 electrons over here on the electrode itself. So one particular reaction will produce 2 electrons, and there will be multiple reactions that will be going on over here. Similarly, if I look at this particular situation, the copper has electronic configuration of argon 3d10 4s1 3d9. By looking at prima facie, it looks like copper plus 2 is unstable and copper is stable. So what will happen? This copper plus 2 ion will have a tendency to convert itself into copper. So यहाँ पे क्या होगा? देखें,
ये कॉपर प्लस 2 आयन जो है ये बेसिकली कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा कॉपर में, और चूंकि कॉपर ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कॉपर प्लस 2, तो कॉपर में ये कन्वर्ट होगा। कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यहीं से ये जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली यही इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस 2 का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड से, और इस इलेक्ट्रोड पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। सो कुछ देर बाद होगा क्या, देखिए ध्यान से, अगर इस बात को समझें कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आयन बढ़ रहा है और इस सॉल्यूशन से कॉपर प्लस 2 आयन कम हो रहा है। जिंक प्लस 2 आयन इस सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, तो नेट नेट ये जो सॉल्यूशन बना है इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा। और जो यहाँ का सॉल्यूशन है कॉपर वाला, इसको देखें तो इसमें कॉपर कम हो रहा है लेकिन सल्फेट तो उतना ही है ना, और सल्फेट उतना ही है, तो बेसिकली सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन कम हो रहा है, निगेटिव आयन उतना ही है, तो सॉल्यूशन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से सोच के बताएं कि अगर एक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया जिंक वाले सॉल्यूशन में, तो क्या ये पॉजिटिव आयन को एंटर करने देगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू रिपल्सन पॉजिटिव आयन का एंटर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ इस सॉल्यूशन को देखें तो ये कॉपर, ये जो सॉल्यूशन है ये निगेटिव चार्ज है, इस पर नेट नेट कैसा चार्ज डेवलप हो जा रहा है, निगेटिव। तो क्या ये खुद एक जो सॉल्यूशन निगेटिव है अब अपने में से क्या पॉजिटिव चार्ज को बाहर जाने देगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, बाहर नहीं जाने देगा। तो जिस वजह से ये सेल कुछ देर तक तो चलेगा, कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होगा, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा, ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो टू कीप दिस रिएक्शन रनिंग आई हैव टू इंट्रोड्यूस negative ion in this solution, negative ion in this solution and positive ion in this solution, and the mechanism in which by which this is done is through salt bridge. अब ये salt bridge क्या है, salt bridge को समझते हैं। देखें, salt bridge is simple arrangement। हम करते क्या है, एक U शेप का ट्यूब ले लेते हैं और इस U शेप ट्यूब में हम इलेक्ट्रोलाइट को ले लेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, ले तो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, पर यहाँ दिक्कत क्या है कि एक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन जा रहा है और दूसरे सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन। अब मुझे चाहिए कि दोनों एक ही टाइम पे पहुँचे, तभी तो भाई रिएक्शन एक ही टाइम पे स्टार्ट होगा और रिएक्शन कॉन्टिन्यूटी उसी तभी बनी रहेगी। तो हमको चाहिए क्या कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं इस पर जो पॉजिटिव आयन है और इसका जो निगेटिव आयन है, इसका जो पॉजिटिव आयन है और इसका जो निगेटिव आयन है, इन दोनों की मोबिलिटी सेम हो, सेम मोबिलिटी क्यों? तो सेम मोबिलिटी की करने के लिए मैं, आपको अगर याद हो तो रेजिस्टेंस वाला पार्ट जो लास्ट में बच गया था उसमें हम डेफिनेटली आयनिक मोबिलिटी की बात करेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि क्यों इन्हीं सॉल्ट को हम ले सकते हैं, क्यों नहीं दूसरे सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट की तरह ले सकते हैं। वापस आते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, लेकिन बात यह है कि जब मैं इस ट्यूब को इन्वर्ट करके इसमें रखूँगा, इन दोनों सॉल्ट में मैं ऐसे इस ट्यूब को लिया, मैंने इस ट्यूब को लिया और इस ट्यूब को इन्वर्ट करके इन दोनों सॉल्यूशन में मैंने पुट इन किया, तो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट एक ही बार में फ्लो कर जाएगा। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल डिसॉल्व दिस इलेक्ट्रोलाइट in a jelly, in a gel. Now gel, if you remember, it's a solution of liquid in solid. तो बेसिकली ये सेमी लिक्विड टाइप के होते हैं, ये फ्लो तो कर सकते हैं पर इनका फ्लो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कभी वो जेली खाई होगी, टॉफ़ीज़ जो आती हैं जेली की, बेसिकली वो भी ऐसी ही होती हैं, वो हिल डुल तो सकती हैं, दे डू नॉट हैव अ डिफरेंट शेप, बट पॉइंट ये है कि वो बहुत तेज़ी से फ्लो नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं, जैसे एलोवेरा जेल आपने देखा होगा, मैं उसको रख दूं तो एक जगह पे फॉर्म्ड स्पेस में रहेगा, पर बात यह है कि अगर मैं सपोज करें इस टेबल पे मैंने एलोवेरा जेल रखा है और मैं इस टेबल को टिल्ट करूं तो वो फ्लो फिर भी करेगा। पर यहाँ हमको उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जेल के ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं, ये कॉटन प्लग इस जेल को फ्लो करने से रोक देगा। अच्छा, ये जेल कोई भी ले सकते हैं हम, पर जनरली चूँकि NCERT में अगर जेल का नाम लिखा हुआ है तो उसी को कंसिडर करते हैं। तो अगर जेल लिया मैंने, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया मैंने। अब जब मैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को, इस सॉल्ट ब्रिज को, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो इस सॉल्ट ब्रिज को जब मैं रखूंगा इस पे, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जितने भी मेरे नेगेटिव आयन है, लेट्स से KCl मैंने इसमें डाल के रखा है, तो Cl माइनस आयन सारे इस तरफ फ्लो करेंगे और K+ आयन अपने आप इस तरफ फ्लो करने लगेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। तो बेसिकली होगा क्या, इसका फर्स्ट फंक्शन तो हो गया कि मेरे सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। सेकंड इसमें क्या हो गया
कि इसके वजह से, सॉल्ट ब्रिज के वजह से मेरा सर्किट एक तरीके से कंप्लीट हो गया, करंट आसानी से फ्लो कर रहा है। तो इसके दो मेन फंक्शन है, एक तो सर्किट को कंप्लीट करना और एक करंट और एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट आर द अदर थिंग्स। तो अब मेरे पास अरेंजमेंट कैसा हो गया कि मेरे पास दो बीकर हैं जिसको मैंने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक बीकर में मैंने कॉपर रॉड डाल रखा है और इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और दूसरे सॉल्यूशन में मैंने बेसिकली जिंक रॉड डिप कर रखा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो नेट इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जा रहा है और उस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होते जा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव लाइक दिस एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। सो अल्टीमेटली मैंने एक करंट जनरेट कर लिया अपने सेल से। नाउ द थिंग कम ओवर हियर इज बेसिकली, यहाँ जब अगर मैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, Copper+2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है। नाउ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखें, इफ आई टॉक अबाउट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में चूंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी और यहाँ पे चूंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, Copper+2 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एंड दिस पर्टिकुलर इन अ लेमन लैंग्वेज दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका और डीपर मैनर भी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, क्यों होता है, बट विल डील this later on in the language when later on in the chapter when we'll start to when we'll have developed या थोड़ी सी और हम डेवलप कर लें अंडरस्टैंडिंग, तो फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी समझेंगे कि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्यों है। बेसिकली थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। बेसिकली देखें, यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज आ गया है इस इलेक्ट्रोड पे तो डेफिनेटली जितने भी कॉपर प्लस होंगे वो सारे के सारे यहीं आके हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये यहाँ पे कॉपर प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो Copper+2 आयन अगर इसको जाना है यहाँ पे सॉल्यूशन से डिपॉजिट होने के लिए, अगर वहाँ जाना है तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और वैसे अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को देखूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो सारे के सारे इस पर नेट कैसा चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव, तो सल्फेट 2- आयन यहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे खुद भी। बहुत सारे सल्फेट 2- आयन अरेंज हो गए हैं और Copper+2 को सॉल्यूशन से जब जाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोड की तरफ तो इन सल्फेट+2- के अगेंस्ट में वर्क करके जाना पड़ेगा। सो देयर इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज डेवलप्ड बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको और डीप में पढ़ेंगे लेटर ऑन इन द चैप्टर। सिमिलरली ओवर हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया और निगेटिव चार्ज आ गया तो सारे Zn+2 आयन क्या होंगे, यहीं अरेंज हो जाएंगे। और जब Zn+2 आयन अरेंज हो गए तो अब Zn+2 को अगर जाना और अगर Zn+2 सॉल्यूशन में एंटर करना है इस यहाँ से, तो इसको कुछ ना कुछ रिपल्सन फेस करना पड़ेगा एंटर करने के लिए। तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में, एंड वी आर टॉकिंग एंड विल नेम दैट पोटेंशियल डिफरेंस एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ये पूरा ढंग से समझेंगे। एनसीईआरटी में भी इस पे पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, कैसे हम मेजर करते हैं, क्यों हम मेजर करते हैं और what are the manners in which we measure this electrode potential. But for the time being हम लोग लेमन लैंग्वेज की तरह समझते हैं कि ये जो Zn+2 डेवलप हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी और यहाँ Copper+2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा इसने। दैट पर्टिकुलर एनर्जी आई एम नेमिंग इट एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से समझें। पहली बात, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 2 चीज़ों पे मेजरली डिपेंड कर जाएगा। पहला तो ये कि यहाँ इस सॉल्यूशन में Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना है, या फिर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो आई नीड टू डिफाइन माई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर 2 कंडीशन। फर्स्ट ऑफ देम इज टेम्परेचर
एंड सेकेंड इज कंसेंट्रेशन। तो जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं जिस पे हम अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। द टेम्परेचर वी टेक एट एज 298 केल्विन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस विल टेक एज 1 m। अगर ये दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं तो मैं अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह डिफाइन करूंगा, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह डिफाइन करने के बाद आई कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे आगे क्या ईएमएफ जनरेट होगा और कैसे जनरेट होगा। नाउ लेट्स सी, लेट्स सपोज कि मैंने अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों टेम्परेचर और इस कंडीशन पे डिफाइन कर लिया है एंड दे आर स्टैंडर्ड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn +2 / Zn, and over here the electrode potential is electrode potential of standard electrode potential of copper +2 / copper। अगर आप ध्यान देखें तो बेसिकली रिएक्शन में हो क्या रहा था, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन मैंने कंडीशन क्या कंसीडर किया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn +2 Zn। देखिए मैं ऑक्सीडेशन भी कंसीडर कर सकता हूँ, रिडक्शन भी कंसीडर कर सकता हूँ। अब अगर दोनों को ध्यान से मैं समझूं कि क्यों मैं यहाँ पे रिडक्शन ही कंसीडर कर रहा हूँ, क्या ऑक्सीडेशन भी कंसीडर कर सकता हूँ क्या। देखिए यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बेसिकली इस रिएक्शन से हो रही है, इस रिएक्शन से हो रही है Zn / Zn +2। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहूंगा। और यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये बेसिकली किस रिएक्शन से हो रही है, जब कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं रिडक्शन पोटेंशियल कहूंगा। जो ओवरऑल एनर्जी मुझे रिएक्शन में मिल रही होगी या लग रही होगी वो क्या है। नाउ लेट्स से कि मैं ओवरऑल एनर्जी निकालने जा रहा हूं एंड विल कॉल इट एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ये क्या होगा, बेसिकली इस रिएक्शन से मुझे एनर्जी रिलीज हुई तो मिली, दैट मीन्स E Cu +2 / Cu, और वहाँ जब जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ है तो वो एनर्जी भी कंज्यूम, वहाँ पे भी एनर्जी बेसिकली कंज्यूम हुई है। वो एनर्जी डेफिनेटली निगेटिव होगी, लेकिन मैं उसको अगर इस तरीके से लिखूँ E0 Zn / Zn +2, तो ये मेरा ओवरऑल एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा कि मैं ओवरऑल एनर्जी कितनी होगी, इतनी एनर्जी प्लस दिस एनर्जी। इसमें से डेफिनेटली ये वाला निगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। ना इफ आई कन्वर्ट दिस इक्वेशन बोथ ऑफ देम इन वन फॉर्म ओनली, क्योंकि देखें यहाँ क्या है, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। हमारे एनसीईआरटी में क्या है या फिर हम स्टैंडर्डली कॉमनली क्या फॉलो करते हैं, हम सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की तरह पढ़ते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी में एक टेबल भी मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसमें लिखा होगा, टेबल का हेडिंग ही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल। सो सारे जो भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को पढ़ते हैं सबको रिडक्शन के फॉर्म में ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसको भी मैं रिडक्शन के फॉर्म में ही कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, और E Cu +2 / Cu ये तो रिडक्शन वाला ही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं -E Zn +2 / Zn लिख लूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखिए अगर इसमें मैं मान रहा हूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एनर्जी निकली है वो कितनी है, E0 Zn / Zn +2, तो अगर मैं रिएक्शन उल्टा करूं, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इसको मैं उल्टा करूं तो क्या ये एनर्जी भी निगेटिव हो जाएगी क्या, डेफिनेटली। ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में हीट में पढ़ा है। आई एम ट्राइंग टू लिंक दैट पर्टिकुलर थिंग्स, बट ये क्या है, ये लेमन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम ढंग से समझ जाएंगे और डिस्कस कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और वहाँ पे फिर से हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यहाँ निगेटिव रख रहे हैं। क्या हर केस में हम रख सकते हैं, नहीं भाई, हर केस में तो डेफिनेटली नहीं रख सकते हैं। यहाँ क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि इसको हम रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं तो सेम रिएक्शन मिल रहा है। मतलब कुछ केसेस में जहाँ पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन और रिडक्शन का रिएक्शन सेम नहीं होगा उल्टा करने पे, उस केस में नहीं कर सकते, जैसे वाटर का केस है, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम इन डिटेल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के टेबल को। तो उस केस में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कब हम डायरेक्ट नेगेटिव लिख सकते हैं, कब हम डायरेक्ट नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आई एम टेकिंग इट एज इन अ लेमन लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रॉम दिस आई कैन राइट दैट EMF ऑफ द सेल, E0 of the cell, E0 of the cell is equals to E copper +2 / copper
minus E Zn plus 2 slash Zn. Now if I look at this equation and try to generalize it, देखें यहाँ क्या है कि मैं किसी भी सेल के लिए लिख सकता हूँ कि EMF ऑफ द सेल, अगर मैं देखूँ कॉपर हाफ में हो क्या रहा था, कॉपर हाफ में तो एक्चुअली रिडक्शन ही हो रहा था ना, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख लूँ E रिडक्शन माइनस जिंक हाफ में क्या हो रहा था, जिंक Zn plus 2 में कन्वर्ट हो रहा था, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो क्या मैं E नॉट ऑक्सीडेशन लिख लूँ क्या? तो किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए E नॉट वैल्यू कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन. सेकेंड थिंग, बाई सर्टेन कन्वेंशन दैट वी फॉलो, वी ऑलवेज राइट, जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसको हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं और रिडक्शन हाफ को हमेशा हम राइट में लिखते हैं. तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E लेफ्ट माइनस E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट. तो आई होप ये E नॉट का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं. इसके बाद इसका एक्चुअल एप्लीकेशन IIT या फिर नीट में आता है, जहां हम डिस्कस करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन को विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.